Hello, sister. You can start whenever it's comfortable for you. I'm really sorry. Actually, मैं mute पे रह गई थी. No Now we'll start. problem. No problem, sister. अब start करते हैं. हाँ जी, हाँ हाँ जी. जी, sure. So welcome everyone to the reading session. We'll start the session with a short meditation. Today we will practice meditation on changing our old beliefs. So please sit down comfortably. Take a deep breath in. Let the breath flow naturally. Close your eyes. With each exhale, feel your body relaxing, letting go of tension, letting go of control. Allow stillness to spread through your mind. Now observe your thoughts like clouds drifting across the sky. You are not the clouds, you are the vast, open sky behind them. Watch the patterns of your mind without judging them. Notice if certain thoughts keep returning, especially those that begin with I can't, I am not enough, or this always happens to me. Just observe. Bring into awareness one belief that feels heavy or limiting. Maybe it's about your worth, your abilities, or relationships. Silently name it. The old belief I am ready to release is. So we need to practice this. The old belief I am ready to release is. Any one which is coming to your mind, feel where it lives in your body. Perhaps tightness in the chest, heaviness in the stomach, or pressure in the head. Breathe into that space. With each exhale, imagine releasing the energy of that belief as if smoke is leaving your body and dissolving into light. Now ask gently, is this belief absolutely true? Who would I be without this thought? See how your heart responds. Maybe this belief was formed long ago from pain, fear, or misunderstanding. Thank it for whatever protection it once offered. It helped you survive, but now you are ready to evolve beyond it. Now breathe in light, bright golden light. Let it fill the space that was once occupied by the old belief. As this light expands, repeat softly, I am open to new possibilities. I choose to believe in my inner strength. I am worthy of love, success, and peace. Feel these new beliefs taking root in your heart, like seeds that will blossom with every mindful breath. Affirm silently, I release the past with gratitude. I welcome transformation. I am free. Take a few slow breaths, and when you are ready, open your eyes gently. Carry this lightness, this newness, this freshness into you in the whole day. Thank you.
Now we will start the reading session. So yesterday we started a new chapter, the chapter 4. The heading was, Is it true? So author was trying to explain us that what we believe becomes true for us. So she gave us an example that when a glass is full half, one can either say that the glass is half full. So this is one belief and it becomes true for him. And the other person may say the glass is half empty. So this is also another belief and it becomes true for him. If we see lack, we will attract lackness and lack will become true for us. And if we see abundance, then abundance will become true for us. So today we will start. It's only a belief you learned as a child. Yesterday we were talking about that some beliefs are really positive and nourishing. Like for example, author explained, look both ways before you cross the street. So when we cross a street, हम आज भी दोनों जगह देख के cross करते हैं. That is so positive and so nourishing belief. Now other thoughts are very useful at the beginning, but as we grow older, they are no longer appropriate. Like, don't trust strangers. Maybe a good advice for a small child, but for an adult to continue this belief will only create isolation and loneliness. So, author is trying to explain us कि कोई belief as a छोटे बच्चे को देना अप्रोप्रिएट है, जैसे कि अनजान आदमी पर विश्वास मत करना, ये एक छोटे बच्चे के लिए सही है, लेकिन अगर बड़े होने के बाद भी हम ये बिलीफ को अपना के रखेंगे तो हमें आइसोलेशन, अकेलापन ऐसे फील होगा. Why do we so seldom sit down and ask ourselves, is that really true? For instance, why do I believe things like it's difficult for me to learn? तो ऑथर कह रहे हैं कि कभी कभी खुद को थोड़ा बैठ के पूछना जरूरी है कि जो मैं बिलीव करती हूँ वो ऐसा क्यों बिलीव करती हूँ, क्या वो सच में सही बात है. फॉर एग्जाम्पल, इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू लर्न. जैसे कि स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्ट लगता है कभी कभी पढ़ना, एग्जाम्स अपियर करना या जॉब का इंटरव्यू देना. तो उन लोग यही कहते हैं कि ये मेरे लिए डिफिकल्ट है. तो हमें चुपचाप शांति से बैठ के खुद से पूछना चाहिए कि ये जो डिफिकल्ट है हम कहते हैं ये तो बस एक बिलीफ है, क्या ये बिलीफ को पकड़ के रखना हमारे फायदे में है. बेटर क्वेश्चन टू आस्क आर, इज इट ट्रू फॉर मी नाउ, क्या ये अभी भी मेरे लिए ट्रू है. वेयर डिड दैट बिलीफ कम फ्रॉम, कहाँ से ये बिलीफ को मैंने अपना लिया. डू आई स्टिल बिलीव it because a first grade teacher told me that over and over. क्या मैं आज भी उस पे इसलिए विश्वास रखता हूँ क्योंकि एक बार किसी जमाने में कोई टीचर ने मुझे बार बार ये चीज बोल दिया था. वुड आई बी बेटर ऑफ इफ आई ड्रॉप्ड दैट बिलीफ, क्या आज अगर मैं वो बिलीफ को छोड़ दूँ क्या ये मेरे फायदे में होगा. ये सारी क्वेश्चंस हमें खुद से पूछना है. Believes that boys don't cry and girls don't climb trees create men who hide their feelings and women who are afraid to be physical. If we were taught as a child that the world is a frightening place, then everything we hear that fits that belief we will accept as true for us. The same is true for don't trust strangers, don't go out at night, or people cheat you. ये सारे जो भी एग्जाम्पल्स ऑथर दे रहे हैं उससे एक बिलीफ सिस्टम बनता है और जो हमारी लाइफ को रन करता है डे टू डे में. अगर ऐसा बिलीफ को हम पकड़ के रखे हैं कि स्ट्रेंजर्स को ट्रस्ट नहीं करना है तो हम सोशल नहीं हो पाएंगे, हम फ्रेंड्स नहीं बना पाएंगे. या पीपल चीट यू तो भी हमारे अंदर ट्रस्ट की भावना नहीं आएगी. या डोंट गो एट नाइट तो हम कभी एक्सप्लोर भी नहीं कर पाएंगे लाइफ में.
On the other hand, if we were taught early in life that the world is a safe place, then we would hold other beliefs. We would easily accept that the love is everywhere and people are so friendly and I am always have whatever I need. अगर एक छोटा सा बिलीफ, एक तो ये कि दुनिया अच्छी नहीं है और एक दूसरा ये कि दुनिया बहुत ही अच्छी जगह है, सुरक्षित जगह है, वी लिव इन अ सेफ प्लेस। तो क्या होगा, बस थोड़ा सा चेंज हुआ है लेकिन बहुत कुछ दुनिया ही बदल जाती है, हमारी आउटर एक्सपीरियंसेस ही बदल जाती है। तो एक पहले वाले डर वाले बिलीफ से हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लाइफ को जी ही नहीं पाएंगे। और जहां हमने ये सोच लिया कि सेफ प्लेस है, वहां हम बिलीव करेंगे कि लव तो हर जगह है, फ्रेंड्स तो हर जगह हैं और हमें जो चाहिए वो हमें हर जगह मिलने लगेगा। If you were taught as a child that it's all my fault, then you will walk around always feeling guilt no matter what happens. Now, this is so much important क्योंकि as a child हम कई बार बच्चों को ऐसे बोल देते हैं कि ये तो तुम्हारी ही गलती है। कुछ भी सपोज छोटी छोटी इंसिडेंट्स, कुछ वास टूट गया हाथ से, कुछ कांच का ग्लास टूट गया हाथ से, या बच्चा कम नंबर से पास हुआ है, तो हम बहुत जोर से छिड़क देते हैं, डांट देते हैं कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम कम मार्क्स हमेशा ही लेकर आओगे, ये तुम्हारी ही गलती है कि तुमने पढ़ाई अच्छे से नहीं की। तो ये जो डांट देते हैं, बच्चे के अंदर गिल्ट ले आते हैं, फिर वो गिल्ट वो हर जगह अपने लाइफ में कैरी करेगा नो मैटर व्हाट। बच्चे के मन में जो बीज पड़ गया उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। So your belief will turn you into someone who is always saying I am sorry, क्योंकि वो तो हमेशा यही सोचेगा कि मेरी ही गलती है, तो वो हर चीज में सबको सॉरी बोलता रहेगा। If you learned to believe as a child I don't count, then this belief will always keep you at the end of the line wherever you are. Like my childhood experience about not getting any cake. See my story chapter 16. Sometimes you will feel you are invisible when others fail to notice you. तो यहाँ पे और एक एग्जाम्पल ऑथर ने दिया कि सपोज एज अ चाइल्ड हम ये बिलीव करते हैं कि मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं है, आई एम नॉट काउंटेड। सो इस वजह से क्या होगा कि हम हमेशा पीछे ही रह जाएंगे, हमें यही लगेगा कि मैं तो किसी के लिए कुछ जरूरी ही नहीं हूँ, तो मैं पीछे ही रह जाऊंगी, अकेले ही रह जाऊंगी। तो ऑथर ये कह रही है कि उनका भी चाइल्डहुड एक्सपीरियंस में कुछ ऐसा चीज है कि उनको कभी भी केक नहीं मिलता था, और ये चीज हम चैप्टर 16 में पढ़ेंगे। समटाइम्स यू विल फील यू आर इनविजिबल, हमें ऐसा लगता है। इनफैक्ट ये मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैं खुद को अनवर्दी समझती हूँ या फिर आई फील कि मेरी वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, जहाँ मुझे जाना है वहाँ मेरी ज़रूरत नहीं है, तो मुझे ऐसे ही फील होता है कि मैं इनविजिबल सी हो गई हूँ। सो ये होता है ऐसा, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द बिलीफ विच आई कैरी इन माइंड। वहाँ पे आउटर एक्सपीरियंसेस मेरा ये इनर बिलीफ की वजह से हो रहा है। Did your childhood circumstances teach you to believe nobody loves me? Then you are sure to be lonely. Even when you bring a friend or relationship into your life, it will be short lived. तो अगर हमारा चाइल्डहुड सर्कमस्टांसेस ने हमें ऐसे टीच कर दिया है कि हम ऐसा विश्वास रखते हैं कि मेरा मुझसे कोई प्यार नहीं करता, तो अगर ये बिलीव है मन के अंदर, तो इवन if बाहर हम कोई रिश्ते में जुड़ते हैं या कोई फ्रेंड बनाते हैं, तो वो थोड़े से टाइम के लिए ही होगा, क्योंकि हमारा इनर बिलीफ तो यही है ना कि हमें कोई प्यार नहीं करता, तो ये प्यार फिर बाहर भी नहीं रिसीव हो पाएगा। Did your family teach you there's is not enough? Then I'm sure you often feel as though the cupboard is bare, or you find you just get by or are always in debt. अगर हमारे प्यार परिवार ने हमें ऐसा सिखाया है कि हर कुछ इनफ नहीं है, मतलब हमेशा ही कुछ कमी है, देर इज नॉट इनफ, हम हमेशा इस भावना में रहते हैं कि कभी भी
मतलब हमारी जरूरत पूरी नहीं हो रही है, कुछ कमी है, कुछ लैक है, कुछ मिसिंग है। हम अगर इस फीलिंग में रह रहे हैं ना, तो हमें हमारी लाइफ में जितना कुछ भी है हमें वो कम ही लगेगा हमेशा। कबर्ड में चाहे जितने भी कपड़े हो हमें वो कम ही लगेंगे। तो यही ऑथर समझा रहे कि हम हमेशा डेट में ही रह जाएंगे। I had a client who had been brought up in a household where they believed everything was wrong and could only get worse. His main joy in life was playing tennis, and when he hurt his knee, he went to every doctor he could find, and it only got worse. Finally, he could not play at all. तो उस ऑथर यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल दे रहे हैं। उनके उनके क्लाइंट थे जिनके घर परिवार गलत ही होता जाएगा। ये उनका पूरा परिवार का एक ना बिलीफ था। तो उस वजह से क्या हुआ, ये जो क्लाइंट है उसको टेनिस खेलने में बहुत खुशी मिलती थी, लेकिन एक बार घुटनों में उनको चोट लग गई। और जिस वजह से फिर जब वो डॉक्टर के पास गए तो हर एक डॉक्टर के पास उन्होंने विजिट किया जितना भी वो जानते थे, और उनकी कंडीशन लेकिन वर्स ही होके गई, और वो कभी भी फिर खेल नहीं पाए। तो ऑथर यही समझा रहे हैं कि दिस इज द आउटर एक्सपीरियंस ऑफ द इनर बिलीफ। वो बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव था कि मेरे साथ रॉन्ग ही होगा, इसलिए रॉन्ग ही होता गया। Another person had been brought up as a preacher's son, and as a child, he was taught that everybody else comes first. The preacher's family always came last. Today, he is wonderful at helping his clients get the best deal, yet he is all usually in debt with little pocket money. His belief still makes him last in line. दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। देखा जाए तो वो जो टीचर्स सन है उनके परिवार ने एक बहुत ही अच्छा संस्कार उसमें डाला कि हमेशा दूसरे आगे आते हैं। लेकिन उस वजह से ये हुआ कि वो हर एक क्लाइंट को तो वंडरफुली हेल्प करता रहा, बट उसके पास हमेशा ही कमी रह गई। एकदम थोड़े ही पैसे उसके पास रहते थे। वो प्रीचर फैमिली हमेशा लास्ट ही होती थी, एंड वो पर्सनली वो पर्सन भी जो प्रीचर्स सन है वो खुद भी लास्ट रहता था। तो ये भी तो हमें सीखना जरूरी है कि सामने वाले को हमेशा आगे रखना है, लेकिन खुद को भी आगे करना भूलना नहीं है। जैसे कि गॉड ऑल्सो एक्सप्लेन्स कि अपने आप को भी आगे बढ़ाना है और दूसरों को भी आगे बढ़ाना है, ताकि हमारे लाइफ में भी तो हम कभी लैक फील ना करें ना, हम भी एबेंडेंस को फील करें। तो इसलिए हमें खुद को भी आगे रखना है, ये बिलीफ भी जरूरी है। If you believe it, it seems true. How often have we said, that's the way I am, or that's the way it is? Those specific words are really saying that that's what we believe to be true for us. This is very, very, very important क्योंकि हम सपोज हम गुस्सा करते हैं हर बात में ना, हम चिढ़ जाते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि मैं तो ऐसी ही हूं ना, मुझसे मैं ये मेरी आदत है ना, हम ऐसे कह देते हैं। सपोज मुझ में भी डरने का संस्कार है, तो कुछ भी ऐसा सिचुएशन होगा जो जिससे मुझे डर लगता है मैं उससे भागूंगी। तो एंड आई विल थिंक कि ये नॉर्मल है ना, बिकॉज इससे मुझे डर लगता है, तो दिस इज वी टेक इट एज नॉर्मल। दैट्स द वे आई एम, वी थिंक इट इज नेचुरल, इट इज नॉर्मल। Usually, what we believe is only someone else's opinion we have incorporated into our belief system. No doubt, it fits right in with all the other things we believe. तो ऑथर बोल रहे कि ये नॉर्मली जो हम किसी और से इनकॉर्पोरेट कर लिए हैं और अपने बिलीफ सिस्टम में उसको लगा दिए हैं, वी हैव पुट इनटू आवर बिलीफ सिस्टम। तो ये एक बिलीफ के साथ नहीं, सारे ही चीजों के साथ ऐसे ही होता है। आर यू वन ऑफ द
Many people who will get up in the morning, see that it's raining and say, oh, what a lousy day. क्या हम ऐसे हैं? वो ऑथर पूछ रही है. it it is not a lousy day, it is only a wet day. If we wear the appropriate clothing and change our attitude, we can have a lot of rainy day fun. If it is really, I believe that rainy days are lousy days, then we will always greet rain with a sinking heart. तो अगर हम रेन को ऐसे समझते कि यार कादा कीचड़ हो जाएगा रास्ते में, हम भीग जाएंगे, हम उसको ना कभी भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे. हम हमेशा एक उदास हैवी हार्ट के साथ ही रेन को अप्रोच करेंगे. लेकिन rain is so much of fun. Only if we change our perception, we will fight the day rather than flow with the happening in the moment. हम हमेशा फिर लड़ते ही रहेंगे, यार बारिश कब रुकेगी, ऐसे लड़ते ही रहेंगे मन ही मन, और उस मोमेंट को एंजॉय नहीं करेंगे. If we want a joyous life, we must think joyous thoughts. ये कितना अच्छा ऑथर ने एक लाइन में कह दिया कि अगर हमें खुशनुमा लाइफ चाहिए, हमें अगर खुश रहना है, तो हमारे थॉट्स भी बहुत बहुत खुशी वाले होने चाहिए. इफ वी वांट अ प्रॉस्परस लाइफ, वी मस्ट थिंक प्रॉस्परस थॉट्स. और अगर हमें प्रॉस्पर करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, सक्सेसफुल होना है, पैसे कमाने हैं, तो हमें वैसे ही थॉट्स होने चाहिए. If we want a loving life, we must think of loving thoughts. Whatever we send out mentally or verbally will come back to us in like form. जो भी हम मेंटली या वर्बली हम सोचते रहते हैं, वही हमारे पास आता है. Each moment is a new beginning. I repeat, the point of power is always in the present moment. You are never stuck. This is where the changes take place, right here and right now in our own minds. It doesn't matter how long we have had a negative pattern or an illness or a poor relationship or lack of finances or self hatred. We can begin to make a shift today. तो ऑथर अब समझा रही हैं कि हर एक सेकंड एक न्यू बिगनिंग है. तो कोई बात नहीं, अब तक चाहे हम जितने भी बार फेल हो गए, या जितने भी बार नेगेटिव पैटर्न्स में चले गए, जितने भी बार बीमार पड़ गए हो, या कितने भी बार हमने पुअर रिलेशनशिप फेस किया हो, या फाइनेंस में कमी फील करी हो, या सेल्फ हेट्रेड फील करी हो, अब तक चाहे हजारों बार भी ऐसा हो गया हो, still we can make shift today because power lies in present moment. Your problem no longer needs to be truth for you. कोई भी प्रॉब्लम जो अब तक हो चुकी है, जो पैटर्न अब तक रिपीट होते ही रहता है, वो आपके लिए सच है, आगे सच होगा, वो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, वैसा नहीं होता है. इट कैन नाउ फेड बैक to the nothingness from whence it came. You can do it. अब वो पूरी तरीके से खत्म हो सकता है, नथिंगनेस में कन्वर्ट हो सकता है. अभी आपको बस शुरुआत कर देनी है. Remember, you are the only person who thinks in your mind. You are the power and authority in your world. ऑथर हमें दोबारा ये ध्यान दिला रहे हैं कि याद रखो, आप ही सिर्फ एक पर्सन हो जो आपके माइंड में सोचता है, और आपके पास ही सारी शक्ति है, सारी अथॉरिटी है आपकी दुनिया की, और किसी के पास नहीं है. Your thoughts and beliefs of the past have created this moment. आज जो हम मोमेंट में जी रहे हैं, वो हमारे थॉट्स और बिलीव्स पास्ट के, वो प्रेजेंट मोमेंट में मैनिफेस्ट हुए हैं. एंड ऑल द मोमेंट्स अप टू दिस मोमेंट्स, सारे मोमेंट्स अप टू दिस प्रेजेंट मोमेंट, what you are now choosing to believe and think and say will create the next moment. अब पास्ट में तो हमारा कोई चेंज करने का कंट्रोल है नहीं, प्रेजेंट में अब जो भी हम सोचेंगे वो हमारा नेक्स्ट मोमेंट को क्रिएट करेगा, एंड द नेक्स्ट डे एंड द नेक्स्ट मंथ एंड द नेक्स्ट ईयर.
Yes, you darling. I can give you the most marvelous advice coming from my years of experience. Yet you can continue to choose to think the same old thoughts. You can refuse to change and keep your all problems. तो ऑथर यहाँ समझा रहे कि मैं एक मार्वलस एडवाइस, बहुत ही खूबसूरत सा एडवाइस आपको देना चाहती हूँ अपने सालों के एक्सपीरियंस से, कि सिर्फ आप ही चूज करते हो अपने लाइफ को। तो अगर आप चूज करते हो उसी सेम ओल्ड थॉट्स में रहने का, तो आप रिफ्यूज कर रहे हो चेंज आने पे, और आप अपने वही पुराने प्रॉब्लम्स को हमेशा के लिए अपने पास रख लेते हो। You are the power in your world. You get to have whatever you choose to think. सिर्फ आप ही अपनी दुनिया की ताकत हो, और आपके पास चॉइस है आपको क्या सोचना है। This moment begins the new process. इस मोमेंट में एक न्यू प्रोसेस स्टार्ट होता है। Each moment is a new beginning, and this moment is a new beginning for you right here and right now. Isn't that great to know? This moment is a point of power. This moment is where the change begins. अब तक जो हुआ सबको एकदम आसानी से लेट गो करना है, और उसको पकड़ के रिजिट नहीं होना कि यार मैं कैसे छोड़ूंगा, ये बात हो गई, वो बात हो गई, या पैटर्न्स इतने बार रिपीट हो गए, यार फिर से ही फेलियर होगा। कुछ भी नहीं, सब चीज को कैसे ही लेट गो करना है, और एक न्यू मी, एक न्यू थॉट अभी इसी मोमेंट से चालू हो सकता है। अब ना न्यू टॉपिक, इज इट ट्रू? स्टॉप फॉर अ मोमेंट एंड कैच योर थॉट. What are you thinking right now? Is it true that your thoughts shape your life? Would you want what you were just thinking right now to become true for you? If it's a thought of worry or anger or hurt or revenge or fear, how do you think this thought will come back to you? सो ऑथर यहाँ समझा रहे हैं कि 1 मिनट के लिए थोड़ा स्टॉप कर लो, एंड क्या थॉट चल रहा है थोड़ा ध्यान से देखो। क्या कौन से थॉट्स है? क्या वो चिंता के थॉट्स हैं, गुस्सा के थॉट्स हैं, क्या तकलीफ हो रही है, पेन हो रहा है, क्या रिवेंज लेना है, या कोई डर है, या शायद सारे भी हो सकते हैं। क्या ये सारे थॉट्स हैं? अगर ये हैं तो वो हमारी को क्या रिजल्ट देगा आउटर एक्सपीरियंसेस में? क्योंकि हमें ऑथर ये बार बार समझा रही है कि सारा ताकत, सारी पावर हमारे पास ही है, जो हम अपने माइंड में सोचते रहते हैं दिन भर। तो इज इट ओनली it it is not always easy to catch our thoughts because they move so swiftly. However, we can begin right now to watch and listen to what we say. If you hear yourself expressing negative words of any sort, stop in mid sentence. Now see, author बोल रहे हैं कि थॉट्स को हमेशा देख पाना इजी नहीं होता है, क्योंकि बहुत फटाफट फटाफट आते हैं। तो ऑथर थोड़ा सा मोटा रूप में बोल रहे हैं कि हम वर्बली क्या बोलते हैं, हम सेंटेंसेस कौन से यूज करते हैं, और अगर हम कुछ नेगेटिव वर्ड्स में सेंटेंसेस को यूज कर रहे हैं तो वहीं पे ही स्टॉप करना है। इधर रीफ्रेज द सेंटेंस और जस्ट ड्रॉप इट। सपोज यार मुझसे ये नहीं होगा, हम ये बोलते हैं, तो जैसे ही अब क्योंकि हम परिवर्तन करना चाहते हैं, वी नीड टू ट्रांसफॉर्म आवर सेल्फ, क्रिएट अ न्यू सेल्फ। तो यार मुझसे ये नहीं होगा जैसे ही हम बोले ना, यार बोलते ही द माइंड विल से कि नहीं मुझसे ही होगा, नहीं को रिप्लेस कर दो ही से, मुझसे ही होगा। इधर रिफ्रेज द सेंटेंस और जस्ट ड्रॉप इट। और अगर कॉन्फिडेंस इन केस नहीं आ रहा है मुझसे ही होगा में, तो चुप रह जाओ, लेकिन ये चीज मत बोलो कि मुझसे नहीं होगा। स्टॉप इट, ड्रॉप द सेंटेंस। यू कुड इवन से इट से टू इट आउट। हम उसको ये भी कह सकते हैं, आउट। नाउ ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया। आज ऐसे ही मॉर्निंग में मेडिटेशन में बैठे थे,
तो ऐसे ही कहा कि डर आउट हो जा, चिंता आउट, फेलियर आउट। ऐसे ही कहा कि नाउ यू ऑल आर ऑफ नो यूज टू मी, प्लीज गो। Imagine yourself in line at a cafeteria or perhaps at a buffet in a luxurious hotel where instead of dishes of food, there are dishes of thoughts. नाउ ऑथर बोल रहे हैं कि सपोज आप कोई कैफेटेरिया में हो जहाँ पे बहुत सारे कॉफी के वेराइटीज या चॉकलेट्स या पेस्ट्रीज, केक, पिज्जा, बर्गर ये सब नहीं रखे हैं, या कोई लग्जरियस होटल के बुफे में आप खड़े हो और बहुत सारी डिशेस वो नहीं है, लेकिन थॉट्स है, वेराइटी ऑफ थॉट्स है। कुछ जॉय के थॉट्स है, कुछ फेलियर के थॉट्स है, कुछ फियर है, कुछ वरी है, कुछ प्योरिटी है, कुछ बहुत उमंग उत्साह वाले है। तो नाउ वी चूज आर फूड, राइट, कि मुझे हॉट कॉफी पीना है कि कोल्ड कॉफी पीना है, कि मुझे पिज्जा खाना है कि बर्गर खाना है। हम अपना खाना खुद चूज करते हैं ना, हर तीनों टाइम भी चूज करते हैं ना। if so we also we you get to choose any and all the thoughts you wish. These thoughts will create your future experiences. जैसे कि जो फूड हम चूज करेंगे वो हमारा हेल्थ बनाएगा। सपोज बॉइल्ड फूड भी हो वहां पे, बॉइल्ड वेजिटेबल सूप हो वहां पे, तो अगर बहुत सारी टेस्टी चीजें हैं जो इंस्टेंट इंस्टेंट मीन्स खुशी तो देगी, इमीडिएट खुशी तो देगी, लेकिन फ्यूचर के लिए तो सूप ही अच्छा है। तो वैसे ही ऑथर समझा रहे कि हम क्या थॉट्स चूज करेंगे वो फ्यूचर एक्सपीरियंसेस क्रिएट करेगा। नाउ इफ यू चूज थॉट्स दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स एंड पेन, that's rather foolish. It's like choosing food that always makes you ill. सपोज ठंडा खाने से, ठंडा पीने से मुझे कोल्ड कफ हो जाता है, मुझे फीवर हो जाता है, मुझे ये चीज पता है, लेकिन जस्ट बिकॉज कि मेरा मन पे कंट्रोल नहीं है, मुझे बहुत टेस्टी लगता है, तो मैं बार बार ही आइसक्रीम खा लेती हूँ, मैं बार बार ही कोल्ड ड्रिंक्स पी लेती हूँ। तो ये मेरे को ही बार बार बीमार करेगा। तो वैसे ही अगर हम थॉट्स भी बार बार फेलियर के क्रिएट करेंगे तो हमारे पास ही बार बार प्रॉब्लम्स एंड पेन्स आएंगे। तो ऑथर कह रहे कि ये फुलिशनेस है। We may do this once or twice, but as soon as we learn which foods upset our bodies, we stay away from them. It's the same with thoughts. Let us stay away from the thoughts that create problems and pain. खाने पीने के मामले में हम एक दो बार करने के बाद समझ जाते हैं। तो आजकल तो थोड़ा सा खाने पीने में और भी लोग कहीं ना कहीं सुधर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत इधर उधर हम खा भी लेते हैं कई बार, एंड वी टेक मेडिसिन एंड वी सप्रेस देम rather than healing or curing it. So this has to be changed in food level and also on thought level. Thank you so much, sister. Actually, I हाँ stopped जी सिस्टर। sharing क्योंकि वो टाइम हो गया तो हाँ, हाँ जी ठीक सिस्टर, है। हाँ जी, आई अंडरस्टूड, ओके। थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल सेशन, बहुत अच्छा थैंक यू लगा। सो, हाँ हाँ जी। जी सिस्टर। तो अब आगे हम कल पढ़ेंगे, एंड आई वुड रिक्वेस्ट अगर कोई भी टेक अवेज है तो आप लोग शेयर कीजिए। अनिका सिस्टर, अनुराधा सिस्टर। थैंक यू सिस्टर, आज का सेशन बहुत ही डीप था एंड वेरी इंफॉर्मेटिव अबाउट बिलीव्स, कि हमारी लाइफ बिलीव्स के ऊपर ही लाइक खड़ी है। हम जो भी आज हैं हमारे बिलीव्स ने ही हमें बनाया है। और ये गिल्ट का बहुत अच्छा लगा कि हम गिल्ट कैसे हाँ, सॉरी सॉरी बोलना, ये गुडी गुडी लाइक टॉक्सिक पॉजिटिविटी, जब हम बच्चों को सिखाते हैं ऐसे करो तो वो बाउंड्री सेट करना भूल जाते हैं कि हमें दोनों चाहिए ना, लाइक वी नीड टू बी पॉजिटिव बट वी ऑल्सो नीड टू बी पावरफुल। कि सिर्फ पॉजिटिव होने से सब ठीक नहीं होता है, लाइक जीवन में कई तरह के सिचुएशंस आते हैं जब हम लोगों को ना बोलना पड़ता है, अपनी बात रखनी पड़ती है, असर्टिव कम्युनिकेशन।
तो उसके लिए पावर भी चाहिए। सिर्फ पॉजिटिव कहने से वो बच्चा वो सिर्फ पॉजिटिव होता है, सॉफ्ट होता है, लेकिन पावरफुल नहीं। तो दोनों तरह हम्म, की शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए, एक्चुअली खुद को देनी चाहिए। लेकिन हम अपने आप को देखें कि हम कैसे, हमारा पर्सनालिटी कैसा है, क्या हम बहुत सॉरी सॉरी बोलते हैं, थैंक यू सॉरी बोलते हैं, या फिर हम अपनी बात ठीक से रख पाते हैं जब हम नो बोलना चाहते हैं, बाउंड्री सेट कर पा रहे हैं या नहीं। तो उस हिसाब से हम अपने बिलीव्स को चेक कर सकते हैं। और एक एक जिस चीज गिल्ट के बारे में पता चली कि गिल्ट, अगर हम ब्लेम, खुद को ब्लेम करते हैं, तो हम खुद को ब्लेम करते हैं, हर चीज में सॉरी बोलते हैं, तो क्या होता है, हम डस्टबिन बन जाते हैं, दूसरे लोग भी हमें, हमको ब्लेम करना स्टार्ट करते हैं, वो अपनी गलती को छुपाते हैं और हमें ब्लेम कर देते हैं, हमें डस्टबिन बना देते हैं। तो ये गिल्ट बहुत भयंकर है। जस्ट टू कीप पीस इन रिलेशनशिप, लाइक सॉरी बोल दो खत्म हो जाए, ऐसे नहीं होता। दोनों तरह का ये होना चाहिए, सो ट्रू। लाइक, या यस। इफ, एंड दिस या इज रियली, गिल्ट वाला। हाँ, कि गिल्ट बहुत हम्म, नेगेटिव है, मैं वही कह रही थी। आप बताइए क्या कह रहे थे आप। वही, अगर हम गिल्ट कॉन्शियसनेस में रहेंगे तो लोग हमें, अगर हमारी गलती ना हो तो भी हमें मार्टियर, हाँ लाइक जी। जो बलि बलि का बकरी बलि की हाँ बकरी हाँ। बना देते हैं, इसलिए तुम्हारी बाबा भी वजह से ये कितनी बार हुआ। कहते हैं, हाँ, तो आप लव और डस्टबिन लॉ का नहीं हो। बैलेंस। हाँ हाँ, जी। तो तो वो क्यों सो हुआ, ट्रू। क्योंकि हम अपने आप को कोसते हैं एक्चुअली, इसलिए लोग हाँ। हमको करते हैं, हम अपने आप को ब्लेम करते हैं हर चीज के लिए, वो मेरी वजह से ले हो गया। तो लोग भी अपना जो है डस्ट, जो भी अपना कचरा है हम पर डाल देते हैं। तो उनकी राइट गलती राइट। नहीं है, हम जो हम सोचते हैं, हमारे हाँ। ऊपर से वो स्टैंडर्ड वो लोग करते हैं। तो हम अपने बिलीव्स को ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि लोग आपको कैसे ट्रीट करते हैं। सो ट्रू। बेस्ड ऑन दैट वी कैन चेक आवर बिलीव्स। लोग तो मिरर्स है ना, जो हम है वो वही रिफ्लेक्ट करते हैं। यस। वेरी नाइस थैंक यू। सेशन। ओम थैंक यू शांति। सो मच। थैंक यू सो मच अनुराधा सिस्टर, थैंक यू सो मच रितु सिस्टर। हाँ जी, मुझे बहुत अच्छा लगा अनुराधा सिस्टर का टेक अवे, स्पेशली गिल्ट को लेके, क्योंकि ये खुद भी मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है। अभी हाल ही में भी मैं एक्सपीरियंस कर रही थी कि मतलब खुद पे ही ब्लेम आ रहा था। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो अनुराधा सिस्टर ने आज रेस किया। समझाया। हाँ जी। यस यस। हाँ जी, सो थैंक यू सो मच। तो हम अपने बिलीफ चेंज करेंगे तो आउटर सर्कमस्टांसेस भी धीरे धीरे चेंज राइट हो जाएंगे। राइट, हाँ जी, वो ये बहुत इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है। इस पे यस। चर्न करना चाहिए और अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हाँ एग्जैक्टली जी। कहाँ और से आ रहा है वो गिल्ट। हाँ,